after 2020, there are too many new investors coming in. And so what is your experience with the new investors? अच्छा है कि जितने लोग बाजार से जुड़े उतना उनके लिए भी अच्छा है और उनकी सेविंग्स की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि ये इट इज लाइक अ कसिनो। वो पद्धति थोड़ी गलत है। इट कैन नेवर बी अ केस ऑफ पीएमएस और एमएफ। इट इज ऑलवेज फर्स्ट एमएफ देन पीएमएस। दिस इज ऑल्सो रेगुलेटेड, सो ये भी सेबी गवर्नड है। हमारे पीएमएस में पोर्टफोलियोज आर फार मोर शार्पली पोजीशनड, कॉन्सेंट्रेटेड। बाजार में पैसे बैठ के ज्यादा बनते हैं। So I have few questions into PMS. Welcome to our podcast, Chit Chat with Chiefs. And today we have with us Mr. Sameer Narayan, Head of Alternate Investment at Aditya Birla Sun Life. He has rich experience of more than 25 years in this industry, and in his pioneer years, he helped setting up the Adani Family Office in 2011. The podcast will be hosted by Mr. Sandeep Gandhi, CEO of Mega Financial Services, and he is managing investment portfolios professionally for 38 years now. PMS stands for Portfolio Managed Service, and it is an equity investment. And today we will discover how it is different from other investment options and what are the do's and don'ts an investor should be aware of. So let's hear it from them. Namaste, Samir ji. Welcome to our office, and I am thankful you are here. Samir ji, you are working as a chief investment officer with Aditya Birla Group into PMS segment. So I have few questions into PMS. First thing I would like to know that after 2020, there are too many new investors coming in. And so what is your experience with the new investors into the PMS segment? Okay. Thank you, Sandeep bhai. It's a pleasure being here and speaking to an audience which is quite enlightened. और अच्छा है कि जितने लोग बाजार से जुड़े उतना उनके लिए भी अच्छा है और उनकी सेविंग्स की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। तो जैसा आपने बोला, 2020 के बाद बहुत लोग शेयर बाज़ार की ओर उनका रुझान हुआ, क्योंकि उस टाइम पे सब घर पे थे। उनके सब बाकी सब एम्प्लॉयमेंट वॉज कर्टेल्ड और वर्क फ्रॉम होम वॉज ऑन। सो लोगों को लगा कि ये शेयर बाज़ार ही एक ऐसा वोकेशन है जो टेक्नोलॉजी के हेल्प से विदाउट एनी डिसरप्शन चल रहा है। तो इसीलिए काफ़ी लोगों का उसमें इंटरेस्ट आया और वो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि ये इट इज़ लाइक अ कसिनो। वो पद्धति थोड़ी गलत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होती। somebody's loss is somebody's gain. So here it is one of the very good avenues for people to look at creating compounding wealth for the next 10, 15, 20 years. Especially for all the youngsters जो 2020 के बाद बाजार में आए हैं, उनके लिए तो एक गोल्डन एरा है, बिकॉज उनके पास अगले 15 साल कंपाउंड करने की पॉसिबिलिटी है। So I think it's a great thing, and it is already shown in the amount of investors who have registered, the number of demat accounts. So I think our experience with all these investors is that ये इनको थोड़ा ये समझाने की ज़रूरत है कि बाज़ार में पैसे बैठ के ज़्यादा बनते हैं, इसके बनस्पत की बहुत जल्दी बने। And mutual fund is also growing equally well. PMS is also growing, but silently growing, and it is not being published in the newspaper and everything. What is your call? कि mutual fund and PMS, mutual fund और PMS पहले करना है फिर म्यूचुअल फंड करना है? What would be your? Okay. तो सुदीप भाई, पहली बात तो ये है कि इट कैन नेवर बी PMS और म्यूचुअल फंड्स। इट इज़ ऑलवेज, अगर आप देखो जैसे रेगुलेटर ने भी म्यूचुअल फंड आप 500 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन PMS में 50 लाख लगता है मिनिमम अमाउंट। वो इसलिए है क्योंकि दी अजम्पशन इज़ कि जिस आदमी ने म्यूचुअल फंड से थोड़ा बाज़ार को समझ लिया, उसको उसका रिटर्न कंपाउंडिंग पोटेंशियल असेस कर लिया, अब उसकी उतनी वेल्थ बन गई है कि अब वो एक और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का ऑप्शन ले सके, तो फिर PMS he becomes eligible.
So I think it can never be a case of PMS or MF. It is always first MF, then PMS. Okay. And even in case you are looking at a PMS, it is always versus your own direct equity versus a specialized fund manager. Okay. So अगर मान लो ये जो टिपिंग का धंधा है कि भाई किसी ने बोला कि ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो लेने के बजाय बिना रिसर्च के आपने इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद ना आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, ना आप उसको समझ रहे हैं, ना आप उसकी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर या डिमांड सप्लाई समझ रहे हैं, उसके बजाय तो आप पीएमएस में ही आ जाओ. Right. And yet there you have an option of giving the stocks and money also, and combination of both also. एब्सोल्युटली. तो That is- अगर yeah. आपका भाई बंधुओं से टिप लेके आपके पास सडनली आपको मालूम पड़ा आपके पास 80-90 स्टॉक हुए हैं और अब आपको समझ में नहीं आ रहा ये मैंने किसके कहने से कब लिए थे और उनका रिटर्न इज नॉट वेरी गुड, तो इट इज़ बेटर कि आप एक पीएमएस मैनेजर को खोजो जो आपके इन्वेस्टमेंट थिंकिंग से मेल खाता हो. बिकॉज पीएमएस मैनेजर भी एट द एंड ऑफ द डे एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के हिसाब से चलता है. सो यू शुड फाइंड अ मैरिज ऑफ थिंकिंग and then give him that entire portfolio, because you can invest through stock transfer also. आपको फ्रेश पैसा लगाने की जरूरत नहीं. आप जो आपके पास 60-70 नाम की लिस्ट हो गई है जिसको आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, जिसको आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, वो आप उसको दे दो, वो आपको मैनेज करके एटलीस्ट ही विल डू अ मोर फोकस्ड जॉब एट इट देन व्हाट यू आर डूइंग योरसेल्फ. अगर आप खुद उस पर रिसर्च कर रहे हो, आप खुद उसको ट्रैक कर रहे हो, उसकी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को समझ रहे हो, तो फिर ठीक है. लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हो, then it is better that you give it to somebody who is doing it as a fiduciary responsibility. और अभी म्यूचुअल फंड में सेबी ने काफ़ी रूल्स रिस्क कंट्रोल के टाइट कर दिए हैं और लुकिंग टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ग्रोइंग इंडस्ट्री, यहाँ पे आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिल रही है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड? संदीप भाई, दिस इज ऑल्सो रेगुलेटेड, सो ये भी सेबी गवर्नड है. इसमें खाली ये है कि जैसे एमएफ में आपका एलोकेशन, कैश परसेंटेज, गाइड रेल्स जो रेगुलेटर स्थापित करता है, बीट इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड कैटेगरीज, फ्लेक्सी, मल्टी, वो सब इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ी ज़्यादा है. लेकिन ये भी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, ये भी ऐसा नहीं है कि हम जो मन में आया करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर आंसरेबल टू द रेगुलेटर एंड टू आवर क्लाइंट. सो हम भी देख समझ के करते हैं और इसीलिए हम, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर एएमसी, हमारे यहाँ रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस उतना ही जरूरी है इन अ पीएमएस एज इट इज इन दी एमएफ. ओके. कोई नया इन्वेस्टर भी सोच रहा है कि मुझे पीएमएस करना है, तो नॉर्मली वो वी टॉक अबाउट कि व्हाट कुड बी द रिस्क ही हैज़ टू अंडरस्टैंड बिफोर इन्वेस्टिंग थ्रू पीएमएस. सर देखिए, पीएमएस और एमएफ दोनों इन्वेस्ट बाजार में ही करते हैं, क्योंकि एमएफ भी बाजार में ही स्टॉक्स लेता है, पीएमएस भी बाजार के ही स्टॉक्स लेता है. हमारे पीएमएस में एज अ practice, portfolios are far more sharply positioned, concentrated, and hence over a 4 to 5 year period, there is a high probability that you can generate that additional 1 or 2% through the PMS. So इसीलिए रिस्क दोनों की मार्केट रिस्क एंगल से सेम है. तो इसीलिए the only factor that I can understand that people have to bear in mind when they talk about PMS is because ये इंडिविजुअल नेम पे होता है, टैक्सेशन पर्सनल है, इंडिविजुअल के नाम पे है, नॉट अ पास थ्रू लाइक अ एमएफ. इसीलिए पीपल शुड बी केयरफुल अबाउट ये लिक्विडिटी पोर्टफोलियो की कैसी है, कि यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट टू ओन लिक्विड नेम्स एंड यू शुड लुक एट पोर्टफोलियो चर्न, क्योंकि अगर चर्न ज़्यादा होगा तो आपकी टैक्सेशन इंसिडेंस ज़्यादा आएगी. इन दोनों फैक्टर्स को आपको मद्देनज़र में रखना चाहिए. एक सबसे बड़ा इशू ये है पीएमएस में कि पीपल आर कीपिंग फैंसी नेम ऑफ द स्कीम्स, तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि बेसिकली हाउ ही इज़ इन्वेस्टिंग और एनीथिंग. तो आपके हिसाब से पीएमएस में भी अभी देयर आर टू मेनी स्ट्रेटेजीज कमिंग, तो आपके हिसाब से पॉपुलर कैटेगरीज जो भी है, बड़ी बड़ी कैटेगरीज में, उसमें आप स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर रिस्क टू हायर रिस्क में मोटा मोटी क्या स्कीम्स पीएमएस में चल रही है, आप बता पाएंगे? तो संदीप भाई, पीएमएस में जैसा आपने कहा, लॉट ऑफ स्पेशलाइज कस्टमाइज स्कीम्स हैं, लेकिन जैसे एमएफ में भी ब्रॉड 7-8 कैटेगरीज हैं, सेम कैटेगरीज, क्योंकि हम भी स्टॉक्स लेते हैं, एमएफ भी स्टॉक्स लेते हैं. आई थिंक दोज कैटेगरीज इन द म्यूचुअल फंड आर देयर फॉर अ रीजन, बिकॉज देन यू कैन गिव डिफरेंशिएशन कि भाई अगर स्मॉल एंड मिड कैप थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू कैन प्रॉब्ली गेट बेटर रिटर्न्स.
लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी कम होती है लेकिन उसमें रिटर्न भी थोड़ा कम होगा, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स कन्वर्ज। तो अगर आप 10, 15, 20 साल देखें, स्मॉल एंड मिड कैप, लार्ज कैप एंड मल्टी कैप categories will converge in terms of returns. Okay. So therefore, it is the starting point that makes a difference. और जहाँ तक categories का नाम है, I agree, a lot of cute sounding names have been there. So investor को इसीलिए समझना चाहिए कि भले ही आप PMS मैनेजर हो कि MF मैनेजर हो, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, आप उससे उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी समझें, उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझें, उसकी इन्वेस्टमेंट थीसिस समझें, और एक बार आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होने के बाद अगर आप उससे फिर ये मालूमात हासिल करें कि भाई ये जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो जो कंपनीज ओन कर रहा है वो व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट, जो कि आप एमएफ में ज़्यादातर नहीं पूछते, एटलीस्ट पीएमएस में आपको अपने मैनेजर से पूछने का अवसर मिलता है, तो आपको उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए. That is the biggest advantage, that they can connect to the fund management team. पर do you see that अभी कोई आदमी है वो बिजनेस में है या प्रोफेशन में बिजी है, तो does he require to give his time regularly interacting with the fund management team, or how frequent he should connect? Well, I think अगर the philosophy is of a low churn, and once you have outlined the thesis as to what are you building in when you construct the portfolio by including a particular stock, उस टाइम पे अगर आप उससे सहमत हैं, then you don't need to interact very regularly to understand whether is the thesis in play. So the best way to do it is कि एक बार आप वो समझ लें, तो उसके बाद आप उसको टाइम दें, कंपनी को टाइम दें एग्जीक्यूट करने का, बिकॉज as they say, Rome was not built in a day. Same way is the case with return also. कि the problem is everybody wants to get rich, but they want to get rich as of yesterday. वो होता नहीं है. Right. So यहाँ पे you have to spend time in the market. You have to let compounding work for you. और compounding तभी होगी जब companies के profits generate or rather they will compound earnings. तो तभी आपका stock price return आएगा. So I think इसमें समझने वाली बात यह है कि आप इसके बजाय कि आप ये सोचें कि भाई कितनी दफ़ा अगर आप उस फंड मैनेजर से हर क्वार्टर बात करेंगे तो ऐसा कुछ नया समझ में नहीं आने वाला है, unless and until there is a new name that has been included or deleted. But I think a 6-month variation or 6-month duration is a good enough frequency to understand कि उसकी थिंकिंग कैसी है, वो क्या सोच रहा है, वो क्यों कर रहा है, तो उतना पर्याप्त होना चाहिए. मेरे हिसाब से ये है कि इनिशियली इट में भी कि भाई चलो यू हैव मोर फ्रिक्वेंट इंटरेक्शंस टू अंडरस्टैंड ईच अदर. Absolutely. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कैन लिव इट कि भाई चलो अभी जो चल रहा है ठीक है, और कहीं पे भी कुछ बड़ी वोलेटिलिटी है, दैट टाइम यू कैन इंटरेक्ट एंड डू इट. Absolutely. Okay. And one more and probably the last question, कि भाई what are the do's and don'ts from the investor side you say when he wants to invest into PMS? संदीप भाई, सबसे पहली बात, खासतौर पे पिछले 6 महीने में सबको लगता है 20% रिटर्न बहुत कम है. रिटर्न एक्सपेक्टेशन की एंकरिंग इज द बिगेस्ट थिंग दैट पीपल हैव टू बी केयरफुल अबाउट. Okay. क्योंकि जो पिछले 3 साल में मार्केट ने दिया है वो हो सकता है अगले 3 साल में उतना ही न दे, लेकिन हो सकता है बैक एंडेड हो, पहले 6-8 महीने उतने अच्छे न हो. तो आप अपना इन्वेस्टमेंट रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा नॉर्मलाइज रखिए. अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका 15% से कंपाउंड करता है तो हर 5.5-6 साल में वो डबल हो जाएगा, जो कि काफ़ी पर्याप्त रिटर्न है. तो आप अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा नॉर्मलाइज कीजिए, अपना रिटर्न होराइजन थोड़ा इलोंगेट कीजिए. यू लुक टू बी हियर फॉर द नेक्स्ट 5-6-10 ईयर्स, बिकॉज इंडिया का अगला 10-15 साल काफ़ी अच्छा होने की आशंका है. So you should let that compounding give you that opportunity. I think these are the only 2 things that investors should be, careful about. Right. Nice. Thank you. Thanks a lot, Samir ji, for your sharing your wise wisdom with our investors. And I'm sure that we'll also learn, and we'll keep on learning. We'll be meeting and we're talking somewhere very near future. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Sandeep. Bye. Thank you.